ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈ-ਫਾਈ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ETT ਕੇਡਰ ਪੇਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਮਮਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਦੇਖਣਾਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਿਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਸਮ ਟਰਮੈਰਿਕ ਪੇਸਟ ਗॉट ਸਪੋਇਲਡ ਔਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਟ ਵਿਚ ਟਰਨ ਰੈਡ ਬਰਾਊਨ ਅਪੋਨ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਗ ਸੋਪ ਔਨ ਇਟ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦੈਟ ਹੈਪਨ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਪ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਟਰਮੈਰਿਕ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹਲਦੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਾਊਨ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਊਨ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਮੈਰਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਨੋਸਡ ਦੈਟ ਹਰ ਮਦਰ ਨੈਵਰ ਕੀਪਸ ਕਰਡ ਇਨ ਕਾਪਰ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ। ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਪਰ ਦੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੀ ਹੈਗਾ ਵੀ A ਤੇ B ਦੋਨੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਡੀ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਪਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ, ਮੈਟਲਸ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈਗਾ, ਮਨਦੀਪ ਗੋਟ ਐਸਿਡਿਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਮੱਚ ਫਰਾਈਡ ਫੂਡ ਐਟ ਅ ਵੈਡਿੰਗ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨਦੀਪ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਰਿਲੀਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਐਨਾਲਜਿਸਕ, ਐਂਟੀ ਐਸਿਡ, ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਟਾ ਐਸਿਡ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਟਾ ਐਸਿਡਸ। ਕਲੀਅਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਦ ਬੋਨ ਆਫ ਰਵੀਜ਼ ਆਰਮ ਗॉट broken while playing. Ravi noticed that in order to keep the bone stable, his doctor used the paste of a special powder. What is the name of that powder? ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਂਹ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੇਸਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰੇ ਆ, ਪਲਸਤਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ। ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈਗਾ, ਹਰਮੀਤ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਵਿਚ ਸਬਸਟੈਂਸ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਐਸਿਡ ਟੂ ਗਿਵ ਆਊਟ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਨ ਫਾਇਰ ਐਗਜ਼ਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਮੀਤ, ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ। ਤਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, NaHCO3। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। NaHCO3 ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, CaSO4 ਹਾਫ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਦੀਪਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਥਸ ਨੇਗੇ, ਦੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ pH ਲੈਵਲ ਹੈ
ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਾ pH ਆ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟਿੱਥ ਡਿਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ pH ਕਿੰਨੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ ਦੀ pH ਆ ਉਹ 6.5 ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਦੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਅਗਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੁੱਥ ਡਿਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਅਮਨ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਟੂਡੇ ਦੈਟ ਫਰੂਟ ਆਫ ਲੈਮਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਐਸਿਡ ਇਨ ਦੈਮ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਸਿਡਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਟਰਸ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਟਰਸ ਐਸਿਡ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਜ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਨੋਲਫਥਲੀਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਆ ਜਾਂ ਖਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੂਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਬੇਸਿਕ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨੋਲਫਥਲੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਰਲੈਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ 1 ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਸਿਡਿਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੋਮੈਟੋਜ਼ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਲ ਟਰਨ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਬਲੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰੈੱਡ ਨੂੰ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਨੂੰ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਨੇਗਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਵੀ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਵੀ ਐਸਿਡਿਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ। ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਸੋਡਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਲ ਟਰਨ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਰੈੱਡ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਖੁਦ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਐਸਿਡਿਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਵਿਨੇਗਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮਿਥਾਈਲ ਔਰੇਂਜ ਇਜ਼। ਮਿਥਾਈਲ ਔਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਥਾਈਲ ਔਰੇਂਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮਿਥਾਈਲ ਔਰੇਂਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਿੰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਯੈਲੋ। ਐਸਿਡਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦਊਗਾ, ਪਿੰਕ ਦਊਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦਊਗਾ, ਯੈਲੋ ਦਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਸਿਡਿਕ ਪਿੰਕ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, CaOH2। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਲੈਕਡ ਲਾਈਮ। ਸਲੈਕਡ ਲਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਲਾਈਮਸਟੋਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਅਣਬੁੱਝਿਆ ਚੂਨਾ ਅਤੇ ਬੁੱਝਿਆ ਚੂਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫੋਸਫੇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਨ ਟੁੱਥ ਐਨੈਮਲਸ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫੋਸਫੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੁੱਥ ਐਨੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟੁੱਥ ਡਿਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੁੱਥ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਬੇਸਿਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦਾ pH ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਾਲਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੂ ਬਿਟਰੋਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 5 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੂ ਬਿਟਰੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬਲੂ ਬਿਟਰੋਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, CuSO4
नाल की सी अपने कोले 5 वाटर मॉलीक्यूल। वाशिंग सोडा का पढ़िया सी आपां ने की सीगा Na2CO3 नाल की सी 10 वाटर मॉलीक्यूल। तो पहले दोनों ऑप्शन तो नहीं आ सकते। थर्ड अपने को है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला की है NaHCO3। तो यदा मतलब ये कि करैक्ट ऑप्शन है ना। करैक्ट ऑप्शन कौन हो गया बेकिंग सोडा, क्योंकि ये की है वाटर नहीं हैगा। जिप्सम को भी वाटर होंगे। जिप्सम का की फॉर्मूला होंगे CaSO4 2 वाटर मॉलीक्यूल। तो जिप्सम दे विच ते प्लास्टर ऑफ पेरिस च की फर्क होंगे कि इन्हों का फॉर्मूला तो सेम होंगे बिल्कुल, बस वाटर मॉलीक्यूल का फर्क होंगे। वो किन्ने होंगे ने 1/2 होंगे आ, तो जिप्सम दे विच किन्ने होंगे आ 2 वाटर मॉलीक्यूल होंगे आ। यही इन्हां च डिफरेंस है। कई बार इन्हां दे विच डिफरेंस भी पूछ लिया जाता कि जिप्सम ते प्लास्टर ऑफ पेरिस दे विच किन्ने वाटर मॉलीक्यूल्स का डिफरेंस है। तो फॉर्मूले इस चैप्टर च बहुत इंपॉर्टेंट ने, सब दे फॉर्मूले तुसीं याद रखो। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 8 द फंक्शन ऑफ क्विक लाइम इन सोडा लाइम मिक्सचर इज टू। कि क्विक लाइम का सोडा लाइम मिक्सचर दे विच की इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। की करता मतलब कि ऑप्शन है ये की करता है जे वो कोई भी नमी होवे, कोई भी मॉइस्चर होवे उन्होंने ऑबजर्व कर लेंदा, मतलब कि बिल्कुल सुका दिंदा है उन्होंने, बिल्कुल जो क्विक लाइम ऑबजर्व कर लेंदा सारे पानी नूं। तो यदा काम की है ऑबजर्व करना मॉइस्चर जोड़ा कि है सोडा लाइम दे विच प्रेजेंट होंदा है। नैक्सट अपने को पूछा इन्होंने pH ऑफ HCl की पूछी है, कहते 4 है pH, तो मोलैरिटी की होगी। आपां नूं पता है कि pH जिन्नी होगी वो की होगी मोलैरिटी, उन्होंने आपां M दे नाल शो करांगे। तो यदि मोलैरिटी कितनी होगी 4 मोलर। क्लीयर। आ देखो नैक्सट क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि जिप्सम POP का मतलब होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जी आप घर कराने POP है ना, वो भी की होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस होंगे। तो इन्होंने दोनों के फॉर्मूले की डिफरेंस है, एक दे विच 2 वाटर मॉलीक्यूल सी, एक दे विच हाफ सीगा। तो इन्हों का जो आप माइनस करांगे, ठीक है, की आऊगा 4 - 1/2 यानी कि 3/2। किन्ने का डिफरेंस हो गया 3/2 का डिफरेंस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट। कि इन्हों के विचों किहड़ी चीज़ है जिहड़ी एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाती। तो अपन पता कि आह सारे एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं, कौन नहीं बनाता कार्बोनिक, क्योंकि यह कंप्लीटली डिसोशिएट ही नहीं होंदा, ठीक है। कार्बोनिक एसिड है जिहड़ा वो एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाता। नैक्सट है अपने को कैमिकल फॉर्मूला कास्टिक पोटाश। हुण आपां नूं पता है कि पोटाश है, इसका मतलब उहदे विच पोटाशियम होएगा, ठीक है। तो इन्हां सारियां दे विच तां पोटाशियम है ही नहीं। पोटाशियम किहदे विच है KOH, इहनूं आपां की कहने आ कास्टिक पोटाश। क्लीयर। नैक्सट अपने को 12 क्वेश्चन ये सी, हुण अपने को 50 क्वेश्चन होर है। अज आप 70 क्वेश्चन कर रहे हैं। आई होप तुसीं अच्छी तरह नाल इन्हां नूं करोगे सारे। विच वन ऑफ द गिवन इज़ अ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स किहड़े हुंदे ने जिहड़े मिनरल्स चों मिलते हैं। तो आह वाले सारे तो मिनरल्स चों नहीं मिलते आपां नूं, कौन मिलता है HCl। कित्थों मिलता है मिनरल्स तो। क्लीयर। कुछ क्वेश्चन होंगे जिहड़े अपने एज इट इज़ याद करने होंगे आ, जिवें ऑर्गैनिक एसिड। ऑर्गैनिक एसिड आप पढ़िया सी किहड़े होंगे आ जिहड़े जां तां प्लांट्स तो मिलते हैं जां एनीमल्स तो मिलते हैं। तो आपां नूं प्लांट्स ते एनीमल्स इन्हां चों किहड़ी चीज़ मिलती है सिट्रिक एसिड ते लैक्टिक एसिड। देखो लैक्टिक एसिड कित्थों मिलता है लैक्टोज मिल्क दे विच हुंदा है, सिट्रिक खट्टे फ्रूट्स दे विच हुंदा है। तो इहदा ऑप्शन की होगा D, बोथ 1 and 3 की ने करैक्ट। सैकेंड ऑप्शन की सीगा मिनरल एसिड सी, ये मिनरल पिछे पढ़िया अपने भी की सी मिनरल एसिड। नैक्सट है विच वन ऑफ द गिवन इज़ इनकरैक्ट। इनकरैक्ट लभना आपां पहला की कहते हैं कि एसिड आ जिहड़ा वो ब्लू नूं की रैड कर दिंदा है। ये तो बिल्कुल सही है कि एसिड्स की ने ब्लू लिटमस पेपर नूं रैड कर दिंदे आ। सैकेंड है एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी। ये भी आपां नूं पता है कि जे आपां पानी दे विच कोई भी एसिड पाउने आ तो वो कि कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, आयन बना देंगे है, जिमें कि H पॉजिटिव प्लस OH नैगेटिव इस तरह नाल, ठीक है। तो की करते हैं इलैक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ये भी बिल्कुल करैक्ट है। थर्ड है एसिड रिएक्ट विद मैटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये तो आप पक्का याद किया सी कि जो किसी भी एसिड नूं किसी मैटल के नाल आपां रिएक्ट कराउने आ तां किहड़ी गैस बनती है हाइड्रोजन गैस। इसदा मतलब तो तीनों सही हो गए, तो इनकरैक्ट तो कोई नहीं। तो की आऊगा ऑप्शन नंबर D, नन ऑफ दीज, कि इन्हां विचों कोई भी इनकरैक्ट
नहीं हैगा। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द गिवन एसिड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड सर्वे डिसीजेस कि बीमारियां का इलाज करने वास्ते इन्हां दे विचों किहड़ी चीज़ है जिहड़ी यूज़ की जाती है, तो किहड़ा किया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड है जिहड़ा यूज़ करते हैं, इहदे बारे आपां कल चंगी तरह पढ़िया सी कि एस्कॉर्बिक एसिड की हुंदा है। ठीक है, तुसीं सारिਆਂ ने इहदे विच बारे होर जानकारी लैनी है। जी किसी ने वीडियो पिछली नहीं देखी तो पहला पिछे वाली वीडियो देखियो, फिर तुहानूं सारे डाउट जिहड़े क्लीयर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपां चार्ट दे विच कल पढ़िया सी कि एसिड एप्पल दे विच किहड़ा एसिड प्रेजेंट हुंदा है। डायरैक्ट अपने को याद कीता सी आपां ने कि किहड़ा हुंदा है मैलिक एसिड। एप्पल दे विच किहड़ा हुंदा है मैलिक एसिड हुंदा है। एक आपां फॉर्मिक एसिड भी पढ़िया सी, वैसे तो आपां चारे ही पढ़े सी पर इह स्पैशल दस्सिया सी कि फॉर्मिक एसिड किन्हां दे विच हुंदा है। सारी वो चीज़ां जिहड़े डंग वगैरह मारदी आ जिवें कि कीड़ी हो गई, ठीक है, मधुमक्खी हो गई, उन्हां विच किहड़ा हुंदा फॉर्मिक एसिड हुंदा वा। नैक्सट है विच वन ऑफ द गिवन इज हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड मतलब जिहड़ा हाइड्राइड दूगा आपां नूं, तां इन्हां विचों ये देखो की दूगा आपां नूं HCN, तां यह की अपने कोले हाइड्रा एसिड है। क्लीयर। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मैटल्स वैन रिएक्ट विद एसिड फॉर्म्स। आपां नूं पता है कि मैटल के जिहड़े ऑक्साइड ने, मैटल ऑक्साइड जदों वो किसी भी एसिड के नाल, मान लो HCl किसी भी एसिड के नाल रिएक्ट करते हैं तो वो की बनाते हैं। तो आपां ने पढ़िया सी कि जदों भी कोई मैटलों के नाल एसिड रिएक्ट करन, चाहे बेसिस के नाल एसिड रिएक्ट करन, तो अपने कोले की बनाउंदे आ सॉल्ट। की बनता है सॉल्ट बनता हमेशा अपने कोले। कहते जदों भी पिछे पढ़िया ये क्वेश्चन हुणी पढ़ के आए हैं कि मैटल ने जड़ियाँ जदों भी किसी एसिड के नाल रिएक्ट करदियां ने तो किहड़ी गैस दिंदियां ने, वो हुणे पढ़िया आपां ने किहड़ी दिंदियां ने हाइड्रोजन गैस। हमेशा ही मैटल्स ने जड़ियाँ एसिडां दे नाल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दिंदियां ने। विच वन ऑफ द गिवन इज फॉर्मड वैन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपां ने हुणी पढ़िया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किहनूं कहंदे ने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किहदा फॉर्मूला सी, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सी। कहते जो आप HCl के नाल रिएक्ट करवाने आ तो अपने कोले की बनता। ठीक है, ये दसना अपने कि अपने कोले की बनता। देखो जो रिएक्ट करवानी अपने कोले की बनूगा NaCl बनूगा, CO2 बनूगा प्लस H2O भी बनूगा। तो मतलब अपने कोले सारा कुछ ही बन रहा है। NaCl भी बन रहा है जोड़ा कि सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, वाटर भी बन रहा है। इट मीनस इसका करैक्ट ऑप्शन की होगा ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ दीज। नैक्सट है स्ट्रोंग एसिड्स का की खासियत होंगी है। स्ट्रोंग एसिड्स कौन होंगे है जिहड़े कि कंप्लीट डिसोशीएट हो जाते हैं, बिल्कुल जिहड़े आयंस नूं तोड़ दिंदे ने, वो की हुंदे नेगे स्ट्रोंग एसिड। जिवें कि HCl डिसोशीएट होकर की करता है H पॉजिटिव दिंदा है ते Cl नैगेटिव दिंदा। ठीक है, HCl की हो गया स्ट्रोंग एसिड। नैक्सट है विच ऑफ अ गिवन इज अ स्ट्रोंग बेस। स्ट्रोंग बेसिस आपां नूं की दिंदी है OH नैगेटिव दिंदी है। तो इन्हां विचों स्ट्रोंग बेस कौन है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। एक ही कंप्लीटली डिसोशीएट हो गया आपां नूं की दूगा K पॉजिटिव प्लस OH नैगेटिव। क्लीयर। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द गिवन इज यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड के तौर पर कि जो अपने तेजाब वगैरह बन जाता है आप किहड़ियां दवाइयां यूज़ करते हैं एंटासिड्स, उन्हां दे विच की चीज़ प्रेजेंट होंदी है, उन्हां दे विच सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट भी हुंदा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स भी हुंदे ने, मैगनीशियम हाइड्रोक्साइड्स भी हुंदे आ। ये तिन्ने चीज़ां जिहड़ियां उस दवाई दे विच पाईयां जांदियां ने, इस करके ऑप्शन की होगा ऑल ऑफ दी अबव। तुसीं इन्हां तिन्नां दे जिहड़े फॉर्मूले ने वो मैंने कमेंट बॉक्स दे विच दसने हैं कि इन्हां दे फॉर्मूले की आ, तां जो मैनूं पता चले कि तुसीं टैस्ट दे विच पार्टिसिपेट कीता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द गिवन इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। आपने देखो पढ़िया सी एक pH स्केल हुंदा है। ठीक है, pH स्केल है, उहदे ते की हुंदा है 0 तो लैके 14 तक वैल्यूज़ होंदियां ने। तो अपने ये भी आ सकता क्वेश्चन कि pH स्केल ते कितनी वैल्यूज़ होंदियां ने 0 तो लैके 14 तक। तो अपने पढ़िया सी कि जिहड़ियां चीज़ां न्यूट्रल होंदियां ने, उदासीन मतलब कि ना तेजाबी ना खारी, उन्हां दी pH कितनी हुंदी आ
7 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब वाटर की pH कितनी होगी 7। ऑप्शन नंबर बी की होगा करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 14 विच वन ऑफ द गिवन इज ट्रू इफ द कहते जी कोई चीज़ लईए अपने दी pH वैल्यू 4 है। देखो अपन पता कि जो 7 तो घट pH होंगी है तो चीज़ की होंगी है एसिडिक। ये अपन ऑलरेडी पता है। हुण आप ऑप्शन देखते हैं कि सबसटेंस है जो बेसिक होगा, नहीं बेसिक तो नहीं होगा क्योंकि तो 7 तो लैके 14 तक होंगे। कहते एसिडिक होगा, हाँ जी बिल्कुल की होगा एसिडिक होगा, न्यूट्रल भी नहीं होंदा। तो डी तो आ ही नहीं सकता। आपां नूं पता है कि जिन्हां दी वैल्यू 7 तो घट हो जाए वो की होंदे ने एसिडिक। जे 7 तो लैके 14 के विचाले होंदी फिर आपां कह देंगे भी बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 15 कि pH वैल्यू 7 किन्हां दी होगी। हुण ही पढ़िया आपां ने वाटर की pH 7 होंदी है वो की होंदा न्यूट्रल उदासीन बिल्कुल ना ही तेजाबी ना ही खारा। pH वैल्यू ते किन्ने क्वेश्चनस बन गए। फिर कहते विच ऑफ द गिवन रिएक्शन सॉल्ट इज रिएक्टिंग विद बेस। सॉल्ट बेस के नाल रिएक्ट कर रहा है, ये देखना आपां ने। हुण देखो सॉल्ट आ जिहड़ा रिएक्ट कर रहा है बेस के नाल, ठीक है। हुण अपने कोल पहले रिएक्शन च की हो रहा है, ये बेस है ये एसिड है, पर इन्होंने तो कहा भी सॉल्ट बेस के नाल रिएक्ट कर रही है। ਇਹਦਾ मतलब पहला क्वेश्चन गलत हो गया पहला आंसर। फिर ये की कहते हैं इन्होंने कहा सॉल्ट बेस के नाल रिएक्ट करे पर यह की है एसिड है, तो यह भी क्वेश्चन गलत हो गया। फिर ये कहते फिर देखो नैक्सट दे विच की आ फिर एसिड के नाल रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी गलत हो गया। हुण की है सॉल्ट आ जिहड़ा किहदे नाल रिएक्ट कर रहा है बेस के नाल रिएक्ट कर रहा है। इट मीनस अपना सही आंसर की होगा ऑप्शन नंबर डी। तो तुसी कई बार ऑप्शनस अगर तुहानूं सही बारे नहीं भी पता, जिवें तुसी फोर्थ रिएक्शन अगर नहीं भी पढ़िया तो तुसी पहले 3 ऑप्शनस दे विच आइडिया लगा सकते हो कि उन्होंने तीनों के की दिता होया आपां नूं एसिड दिता होया पर इन्होंने की कहा बेस कहा। तो आप गलत ऑप्शन कट के भी जो सही ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 विच वन ऑफ द गिवन इज कॉमनली नॉन एज ब्लू विट्रल। देखो आप पिछे पढ़ के आए कि ब्लू विट्रल उसका फॉर्मूला भी लिखा सी आपां ने, तो तुहानूं ये आउंदा ही होना। कौन हुंदा वो कॉपर सल्फेट। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कॉपर सल्फेट के नाल किन्ने नंबर ऑफ मॉलीक्यूल मोल्स लगे होंगे ने वाटर के। आप पिछे पढ़े 5 मोल्स लगे होंगे है, तो उन्होंने आप कहने ब्लू विट्रॉल क्योंकि यदा कलर है जो कि होंगे ब्लू होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मड वैन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जी कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट कर रही है तो की बनूगा। देखो फॉर्मूला लिखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किहदे नाल कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के नाल। तो ये की बनना चाहिए सॉल्ट बनना चाहिए वाटर बनना चाहिए, ठीक है। तो अपने को आपां नूं पता है कि वाटर तो साल्ट दे विच पक्का बनते हैं। इसका मतलब वाटर भी बनूगा सॉल्ट भी बनूगा। तो ऑप्शन की आऊगा ऑप्शन नंबर डी कि बी ते सी दोनों बननगे, ठीक है। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 19 आपां ने की कीता एक एसिड दे विच एसिड नूं आपां ने की वाटर दे विच मिक्स कीता। हुण देखो जो भी आपां किसी एसिड नूं तो यह गल आपां ने याद रखनी है कि आपां कदे भी एसिड दे विच वाटर नहीं पाउंदे। आपां हमेशा की करते हैं वाटर दे विच एसिड पा के उन्होंने नाल की घोलते रहने हैं, क्योंकि अगर आप एसिड दे विच वाटर पावांगे तो वह क्या डेंजरस हो सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि तुहानूं पूछा जा सकता है कि तुसी एसिड दे विच वाटर नूं मिक्स करोगे या फिर वाटर दे विच एसिड नूं मिक्स करोगे। तो जिहड़ा एसिड है वो डेंजरस हुंदा है, इस करके उसकी कंसनट्रेशन भी ज़्यादा हुंदी है। तां करके आपां की है एसिड दे विच वाटर नहीं पाउंदे, आपां हमेशा वाटर दे विच ऐड करते हैं एसिड नूं। तां कहंदे जो वाटर च एसिड नूं ऐड करांगे की होऊगा, एक तो देखो वाटर डिल्यूट हो जाऊगा, होर सैकेंड की है जिहदे वाटर के मॉलिक्यूल्स ने आयन बना देंगे H पॉजिटिव तो OH नैगेटिव के। ਇਹਦਾ मतलब की होगा डिल्यूशन भी हो रहा है आयनाइजेशन भी हो रही है, दोनों चीज़ां हो रही ने। तो बी ते सी किहदे विच हो रहा है ऑप्शन नंबर सी दे विच बी एंड सी बोथ आर करैक्ट। नैक्सट है विच अमंग द गिवन इज़ अ वीक बेस। इन्हां दे विचों देखना आपां ने कि वीक बेस कौन है। देखो तो स्ट्रोंग है आपां ने पढ़िया, ये तो सब तो ज़्यादा स्ट्रोंग है NaOH। नैक्सट है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। KOH की पढ़ के आए आपां हुणे के भी की हुंदा स्ट्रोंग हुंदा, तो ये भी स्ट्रोंग है ये भी स्ट्रोंग है। ऑप्शन की रह गया सी अमोनीयम हाइड्रोक्साइड, एक ही एक वीक बेस है अमोनीयम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। याद रखना ये दोनों की ने स्ट्रोंग ने, स्ट्रोंग भी पूछा जा सकता है तो ये दोनों की ने स्ट्रोंग ने।
क्वेश्चन नंबर 21, विच एसिड इज यूज्ड इन कोला टू गिव इट अ बाइटिंग शार्प टेस्ट, कि इन्हां दे विचों किहड़ी चीज़ है जिहड़ी यूज़ की जाती आ शार्पिंग टेस्ट देने वास्ते। तो ये तुसीं याद रखना, कई क्वेश्चन होंगे जिहड़े याद रखने वाले होंगे आ। तो आपां की है टारटैरिक एसिड, ठीक है। कई बार अपने हायर क्लासिस दे विच हुंदी है इन्हां दी एक्सप्लेनेशन, तो इहदा की आऊगा आंसर टारटैरिक एसिड। फिर देखो नैक्सट क्वेश्चन वैरी ईजी, आप डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि रेंज है जी pH स्केल की कितनी होंगी है, तुहानूं सबनूं पता होगा कितनी होंगी है, 0 तो 14, सब दा करैक्ट होगा ये 0 तो 14। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यू टू एक्सैस पासिंग CO2 थ्रू एन एक्व सोल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम, कहते आप सिलेक्ट लाइम यानी कि CaOH फॉर्मूला नाल दी नाल लिख के देखा करो तो जो तुहानूं पता लग जे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ CO2 ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਕੀਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਕੀਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, CO2 ਗੈਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ CO2 ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਕੀਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਮਿਲਕੀਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਹੁਣ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, CaCO3 बन जाता। ये तुसी सारे फॉर्मूले याद रखने आ। कहते एसिड नूं जदों आपां किसी भी वाटर दे विच पाने आ तां किहड़ी चीज़ बाहर निकलदी आ, आपां नूं पता कि हरेक एसिड दे विच की चीज़ प्रेजेंट हुंदी आ, H पॉजिटिव आइंस हर एक एसिड कोल हुंदे आ। तां इहदा आंसर की होगा ऑप्शन नंबर ए H पॉजिटिव आइंस। नैक्सट है विच एलीमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अरहीनियस एसिड। अरहीनियस एसिड्स दे विच अरहीनियस एसिड कौन हुंदे सी जिन्हां कोले H पॉजिटिव हुंदा सी। अरहीनियस दे बेस कौन हुंदे सी जिन्हां कोले OH नैगेटिव हुंदा सी। तां आपां नूं इन्हां ने एसिड पुछे है, एसिड च कौन होगा हाइड्रोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की होगा करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट कहते मिथाइल रैड है जिहड़ा कि एक सब तो पहले तो पुछ लैणगे मिथाइल रैड है की आ। मिथाइल रैड है जिहड़ा वो की एक इंडीकेटर है। इंडीकेटर मतलब कि सूचक जिहड़ा आपां नूं इह दसदा कि कोई चीज़ जिहड़ी तेजाबी होगी जां खारी होगी। तो जिहड़ा मिथाइल रैड कलर हैगा वो एसिडिक मीडियम दे विच की दिंदा गा, एसिडिक मीडियम दे विच वो रैड कलर दिंदा, एसिडिक दे विच रैड कलर। तो अगर इत्थे बेसिक पुछ लैंदे बेसिक दे विच की दिंदा येलो कलर दिंदा। दोनों क्वेश्चन याद रखने आ, रैड दिंदा एसिडिक दे विच, बेसिक दे विच येलो कलर दिंदा। क्वेश्चन नंबर 27, एक क्वेश्चन जिप्सम का फॉर्मूला मैं डिस्कस कर चुकी हाँ कि जिप्सम तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के दोनों के फॉर्मूले याद करने आ, ठीक है। उन्होंने डिफरेंस की है ये भी देखना, 3-4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप पढ़िया सी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वह फॉर्मूला की है, ये वाला हाफ वाटर मॉलिक्यूल वाला। अगले वो आप थोड़े जे वाटर होर ऐड कर दीए तो की होगा जिप्सम का फॉर्मूला बन जूगा। इट मीनस जिप्सम का फॉर्मूला की है ऑप्शन नंबर बी की है करैक्ट है जिप्सम का, ठीक है। तो फस्ट किहदा गा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। फॉर्मूले चंगी तरह याद कर लेना है, यही बार बार जोड़े रिपीट हो रहे हैं। डूरिंग द प्रैपरेशन ऑफ HCl गैस ऑन ह्यूमाइड डे द गैस इज यूजली पासड थ्रू द कि गैस है जी पास की जाती है। इनू पास करने का परपस की है कि जो आप HCl गैस बनाने, ठीक है, आप एक ट्यूब के विचों दी पास करते हैं उस गैस नूं तां जो जोड़ा भी मॉइस्चर होगा, कोई पानी कोई नमी होगी वो ऑबजर्व हो जूगी। ये विचों दी पास करवाने आप क्यों करवाने आ, इसलिए करवाने ना कि मॉइस्चर जोड़ा ऑबजर्व हो जाए, बिल्कुल आपको गैस मिले वो कोई मॉइस्चर ना हो, कोई भी पानी ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी की होगा करैक्ट ऑप्शन। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ये देखो सारे एसिड्स नेगे तो डिफरेंट किमें हो सकता है, तो इन्हों चो डिफरेंट किसी करैक्टरिस्टिक किसी खास विशेषता करके हो सकता है। कौन डिफरेंट है इन्हों तो सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड्स। सब तो पहली गल इहदी pH सब तो ज़्यादा एसिडिक है, 1 होंदी है इहदी pH, इन्ना ज़्यादा एसिडिक है। सैकेंड ये कि कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता, ठीक है, बाकियों के नालों कंप्लीटली इहदा डिसोशिएशन हो जाता, इस करके ही कि डिफरेंट है अदरस के नालों, स्ट्रोंग एसिड है। नैक्सट है सोडा ऐश कैमिकल फॉर्मूला। देखो फॉर्मूले किन्ने इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने पूछा आपको सोडा ऐश का फॉर्मूला की हुंदा Na2CO3 याद कर लेना है, Na2CO3 ये की है सोडा ऐश का फॉर्मूला।
क्वेश्चन नंबर 31 कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन किचन। ਆਪਾਂ देखो पढ़िया सी कि ਜਿਹੜਾ कॉमन सॉल्ट ਆ ਉਹ किचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ यूज़ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, पर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। बेकिंग पाउडर भी बना सकते हैं, होर की बना सकते ਆਪਾਂ पढ़िया सी कल बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आप ए एंड बी बना सकते हैं। ए तो बी किहड़े ऑप्शन के ने, ऑप्शन नंबर सी दे विच बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कि अपने को लैवल दसना अपने पीएच जी एंटासिड के होंगी आ। हुण एंटासिड्स की होंगे ने, वो वाली दवाइयां, वो वाली मैडिसिनस जां वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां आपां तेजाब नूं खत्म करन वास्ते लैंदे आ। ठीक है, तो वो जी पीएच वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए है, क्योंकि तेजाब क्यों बनया, क्योंकि अपने अंदर एसिड बन गया। तो एसिड इन्ने ज़्यादा तेज़ एसिड नूं खत्म करने वास्ते अपन किसी बेसिक चीज़ की जरूरत है। तो बेसिक की होगा कि इन्ना तो नहीं होगा, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल के कोल आ गया, ये भी न्यूट्रल के कोल आ गया, यह कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया। ताकि होगा ऑप्शन नंबर सी 10। एंटासिड्स ने जिहड़ी उन्हां दी पीएच अप्रोक्सीमेट की हुंदी है 10 हुंदी है, जां उस तो ग्रेटर हुंदी है। ठीक है, उस तो लोअर नहीं हो सकती। ब्लैक एस किहड़ी हुंदी है इन्हां दे विचों, देखो याद करने वाला क्वेश्चन है। ये की हुंदी है बेरियम सल्फाइड। अगर तुहानूं इस तरह ऑप्शन ना हुंदे तो इस तरह ऑप्शन हुंदे बेरियम दा सैंपल है BA सल्फाइड, एवें भी लिखिया हो सकता सी। ब्लैक एश का फॉर्मूला की है बेरियम सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 34 वैन इलैक्ट्रिसिटी पासड थ्रू NaCl सोल्यूशन तो की होगा, कहते जो इलैक्ट्रिसिटी पास करती है NaCl के एक्वस सोल्यूशन के विचों दी। पहले तो कहते सोडियम मैटल मिलूगी, हाँ जी बिल्कुल मिलूगी सोडियम मैटल, क्योंकि ये आयन्स बन जाएंगे। ठीक है, यह जाके डिपोजिट हो जू। फिर की है Cl की है एज अ क्लोरीन गैस मिलूगी आपां नूं, ये भी करैक्ट है, ये भी करैक्ट है। क्लोरीन तो हाइड्रोजन गैस मिलणगियां, करैक्ट है। इसका मतलब की हो गया ऑप्शन नंबर डी की हो गया करैक्ट, सारे ही करैक्ट ने। Cl2 भी बनूगा, हाइड्रोजन भी बनूगा, तो अपने को सोडियम मैटल भी डिपोजिट हो जूगी इलैक्ट्रोड के उपर जाकर। नैक्सट अपने को क्वेश्चन नंबर 35 यह सीगा कि भी किहड़ी इन्हां दे विचों मैटल आ जिन्हों आपां कैरोसीन ऑयल दे विच डुबो के रखते हैं तो जिहड़ी वाटर ते एयर दे नाल बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिंदी आ, तो वो कौन हुंदी है, सोडियम। सोडियम इन्नी ज़्यादा रिएक्टिव मैटल आ कि अगर इहनूं आपां हवा ते पानी के संपर्क विच लैके आवांगे तां उहदी जल जाती है। इन्ना जल्दी कंबशन हुंदा ना, तो इहनूं आपां संपर्क तो बचाउण लई कैरोसीन ऑयल दे विच डुबो के रखते हैं। तो किहड़ी है सोडियम। ये भी पूछा जा सकता कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मैटल, सोडियम इन्नी सॉफ्ट है कि इहनूं आपां करद नाल भी सिंपली कट कर सकते हैं, इन्नी ज़्यादा सॉफ्ट हुंदी है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का अपने फॉर्मूला पढ़िया सीगा की हुंदा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, तो उन्होंने होर की कहने आपां, इहदा फॉर्मूला हुंदा CaOCl2। ये वाला दा फॉर्मूला हुंदा है, इहनूं आपां की कहने आ कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहने इहनूं आपां, आह वाला ब्रैकेट नहीं हुंदा, की हुंदा है CaOCl2। ये वाला फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यदा सैकेंड नाम है, याद कर लेना तुसी ने। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 37 द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज बेसिक मीडियम इज। तो आप पढ़ के आए हैं कि मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है बेसिक मीडियम के विच की हुंदा। उपर क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके आपां, इहदा आंसर तुसी कमेंट बॉक्स के विच खुद दसना है कि किहड़ा कलर हुंदा। बेसिक का भी दसना है, नाल तुसी एसिडिक मीडियम के विच भी दसना है कि की होगा। नैक्सट है द पीएच ऑफ कॉमन यूज्ड टूथपेस्ट। देखो जो टूथपेस्ट है आप बेसिक लवांगे ना, नैचुरल गल है कि आप तेजाबी कोई चीज़ तो नहीं यूज़ करांगे, अपने दंदा विच भी पेस्ट आप तेजाबी लईए तो आप की बेसिक ही यूज़ करांगे। तो बेसिक की होगा, देखो ये तो की एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, नॉन ऑफ हो नहीं सकता, तो 7 तो उपर वाला होना चाहिए, बेसिक आप लवांगे। ठीक है, तो की होगा ऑप्शन नंबर बी। एक फिनोल्फथलीन की एक इंडीकेटर हुंदा, कहते बेसिक मीडियम के विच यह की कलर दिंदा ते एसिडिक मीडियम के विच की कलर दिंदा। फिनोल्फथलीन जिहड़ा पर्पल जे कलर का हुंदा, यह अपने को बेसिक मीडियम के विच आपां नूं पिंक कलर दिंदा ते एसिडिक मीडियम के विच कोई भी कलर नहीं दिंदा। ये आपां टाइट्रेशन करते हुंदे हां +2 दे विच, जिस आपां नूं पता लगदा कि फिनोल्फथलीन है जिहड़ा बेसिक मीडियम के विच पिंक कलर दिंदा, एसिडिक मीडियम के विच कलरलैस हुंदा। तो की होगा ऑप्शन नंबर ए पिंक कलरलैस। नैक्सट है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप रिएक्ट करते हैं जिंक के नाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH
ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਜਿੰਕੇਟ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਵਾਟਰ। ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਜਿੰਕੇਟ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਵਾਟਰ ਬਣੂਗਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਜਿੰਕੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, Na2ZnOH4 Na2ZnOH4 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਟਰ। ਕਲੀਅਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 41 ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਅਨਨੋਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ pH ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ 6 ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ 8 ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ 9.5 ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ OH ਆਇਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ pH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੇਸਿਕ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਸਿਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਥਰਡ ਵਾਲਾ 9.5। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਵੱਧ ਬੇਸਿਕ ਹੈ OH ਆਇਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਪਲ ਥਰਡ ਦਾ। ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ 9.5 ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਰ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 42 ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਹੈ, ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ pH ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ 7 ਤੋਂ ਲੈਸ। ਤਾਂ 7 ਤੋਂ ਲੈਸ ਕੌਣ ਹੈ, 5। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਜੂਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 5 ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ 43 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਪਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਸਾਲਟ ਇਜ਼, ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਹੈ NH4SO4 ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ। ਬੇਸਿਕ ਸਾਲਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹ NH4SO4। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 45 ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਸਿਡਸ ਨੈਵਰ ਫਾਰਮ ਐਸਿਡਿਕ ਸਾਲਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਿਡਿਕ ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਸਾਲਟ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, HCl। ਹੋਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, H2CO3। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ A and C ਸਟਰੋਂਗ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐਸਿਡਿਕ ਸਾਲਟ। ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਕੌਣ ਨੇ, HCl ਤੇ H2SO4। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A and C ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਵਿਨੇਗਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਪਿਕਲਿੰਗ ਐਜ਼ ਇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੇਗਰ ਹੈ, ਸਿਰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਬਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਗੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਨਾ ਕਰੇ ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਚਾਰ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਨੇਗਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਕੀ ਆਊਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਨਿਊਟਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ pH ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 7। ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਸਿਡ ਐਡੀਬਲ, ਈਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਐਡੀਬਲ। ਦੇਖੋ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਰਟੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧਾ ਗੈਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ HCl ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ A, B and D, A, B and D ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। A, B, D ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 49 ਬਿਊਟਾਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ, ਬਿਊਟਾਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਨ ਐਸਿਡਸ ਕੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਊਟੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, CH3 CH2 CH2 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OH, ਬਿਊਟੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਬਿਊਟੇਨੋਇਕ ਓਇਕ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਬਿਊਟ ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਊਟੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਵੇਸ ਤੇ ਵੀਕ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਨਲੀ,
ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਸਿਡਿਕ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।